Okay. So yesterday in last class we have started thermodynamics. Okay. So basics of thermodynamics we have just started, that what it is and what are the systems. Three types of systems are there. That is which are the Laws of isolated. closed system, open system and isolated system. So what is the feature or say characteristics of the open system? Heat can be transferred or Mass. can Yes, so heat and mass both can transfer from the surrounding to system and from the system to surrounding. Means it can exchange, heat and mass both can exchange. Okay. Then characteristics of the closed system is mass don't transfer. mass Heat cannot transfer but heat can transfer. Yes. And for the isolated system, both are constant. both are constant, they are not exchangeable. Okay. And we have seen that also, that perfectly isolated system does not exist. Okay, perfectly isolated system इस वर्ल्ड में है ही नहीं कि वो आइसोलेटेड ही रहे, बट फॉर द कैरेक्टरिस्टिक पर्पस और फॉर से लिमिटेड टाइम पीरियड वी कैन से यस, जैसे कि हमने थर्मस का एग्जांपल लिया. सो थर्मस, सो हम बोलेंगे कि इट इज एन आइसोलेटेड सिस्टम. तो क्या वो मतलब आज गर्म चाय भर दी तो सालों साल गर्म चाय रहेगी? इट्स नॉट लाइक दैट. बट यस, से यू कैन से फॉर 3 hours, for 5 hours, say 1 day, for 2 day. 2 day also very highly insulated should be there. Otherwise in 1 day that's enough. Otherwise it will start losing the heat. Okay, so those things we have seen. Now after that we have seen one concept, that is the state function. Okay, so state function or say point function. So what are they? State function and point functions are those functions whose value does not depend on the path followed, okay, or say methodology used to attain a particular state, but say finally on the point, they are the point function or say they are the state function. That means suppose हमने example भी लिया था. क्या example लिया था कि suppose containers are there, okay, and 3 containers are there. All 3 containers are having say 200 ml of liquid, say water. All 3 are having, or water temperature in all 3 containers is say 80 degrees Celsius. So mass is same, 200 ml. Then temperature is also same, say here also 80 degrees Celsius, second also, third also 80 degrees Celsius. That means first suppose we are reaching the 80 degrees Celsius by burning the candles. Second, we are reaching 80 degrees Celsius by say using electrical coil. And third, say we are using say gas stove, like that burner. Okay, so in all 3 we are reaching the 80 degrees Celsius. From say 30 we are reaching 80 degree, but it does not depend how you have reached, or how fast you have reached, or how slow you have reached, or say you have reached by say burning candles, or say burning natural gas, burning coal, electrical heating, whatever. It depends on the function, point function, that is the state function. That is say state A is, suppose that in that say first water is say at condition A. Okay, and condition A is what? Condition A is say TA is equals to say 30 degrees Celsius, and say mass is equals to say 200 ml. Okay, and then what we are doing, we are heating. So after the heating, one state is reached, that is the state B. Okay, this is say state A. State does not mean कि गुजरात और से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, वो स्टेट नहीं है. ओके, वो एक जोक है कि बताओ कि रिवर गंगा फ्लोज इन विच स्टेट. ओके, तो एक बंदे ने बोल दिया, एक स्टूडेंट ने, कि इन लिक्विड स्टेट. भाई आंसर नहीं पता. ओके, सो हम कौन से स्टेट की बात कर रहे हैं? वो लिक्विड स्टेट भी अलग है, वो हमारा गुजरात, उत्तराखंड, महाराष्ट्र वाला स्टेट भी अलग है. एंड हियर व्हाट वी आर टेलिंग द स्टेट, दैट स्टेट इज आल्सो डिफरेंट. स्टेट मींस से फिजिकल गोल. ओके, और एक गोल है, एक अचीवमेंट है, वहां तक तुम्हें पहुंचना है, एक लोकेशन है, वहां तक तुम्हें पहुंचना है. ओके, दैट इज द स्टेट. ओके,
in thermodynamics. So state A is there. So this is the characteristics of the state A, and I have to reach at state B. Okay. So the characteristics of the state B is mass is same, remaining same, 200 ml, and the temperature at state B is say 80 degrees Celsius. So here it was 30 degrees Celsius and here it was 80 degrees Celsius. So I am concentrated about say how what is the temperature at say state 2. So I will tell 80 degrees Celsius. It does not depend how I have reached that. Okay, that by say burning candles or say gas stove, with the help of gas stove, with the help of burner, with the help of coal, with the help of petrol, कुछ भी यूज किया हो मैंने, बट मुझे 80 डिग्री सेल्सियस चाहिए, वो मुझे मिल गया, दैट्स इट. सो कौन कौन से ऐसे, ये हमने कल तक देखा था और फिर लास्ट में मैंने बोला था कौन कौन से है, वहां से ही अभी हम स्टार्ट करते हैं. सो व्हाट आर दी स्टेट फंक्शंस और से व्हाट आर मींस डिफरेंट स्टेट फंक्शंस, नेम इट. सो पहला ही जो अभी हमने देखा दैट इज व्हाट, टेम्परेचर. सो टेम्परेचर इज अ स्टेट फंक्शन. देन से अनदर say mass also we have seen, so mass is a state function. Then say volume. Okay, so volume also say state function. Okay, and temperature, mass, say pressure, so pressure also state function. Then say internal energy. So internal energy is also a state function. These many names I have told you yesterday. One more is there, one more, there are many, but we are not discussing all here. Okay, there are many state functions. Say enthalpy also state function. Okay, but all those things we will discuss at the gradual, say in the middle of the chapter, or today also maybe we are going to discuss that. So these are the state functions. Now from these we are discussing about this state function, that is the internal energy. So what is internal energy? Okay, so again say I am taking one container and say water I am taking. Okay, so I am taking a water. Okay, and in the water, दिख रहा है water, से ये कलर नहीं दिखेगा, ब्लैक हो गया. हाँ, so water I have taken. Okay, now say here some energy is already there. Suppose this is state A. This is state A. So state A characteristics, say mass is 200 ml. Then say temperature is temperature at state A is say 30 degrees Celsius. Okay, and one more thing, what I have told you, that is the internal energy. So internal energy is denoted by U. Okay, U, not U. Okay, U. Okay, so internal energy is कितना बड़ा U है, इतना बड़ा नहीं होता. ठीक है. Okay, so internal energy is denoted by say capital U. So it is at point A, so I will define it as say UA. Okay, it is at point A, so I will define it say UA. So what is internal energy? Internal energy is the property of the substances. Substance जो है उसी की property है कि वो state पर उसके अंदर कितनी एनर्जी भरी पड़ी है. ओके, तो कैसे भरी पड़ी होगी भाई? एक तो सपोज ये ग्राउंड लेवल पे तो होगा नहीं. ओके, तो ग्राउंड लेवल से एक लेवल पे हो रहा होगा ये एक्सपेरिमेंट, तो फिजिक्स की टर्मिनोलॉजी में उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है थोड़ी बहुत. तो ये सब्सटेंस के पास से पोटेंशियल एनर्जी इज देयर. ओके, देन इसके अंदर सपोज जितने भी मिलियंस और करोड़ ऑफ एटॉम्स होंगे वो सारे, ऐसा तो नहीं है कि स्टिल होंगे. ओके, ये तुमने देखा ही होगा, मैंने शायद तुम्हें बताया है. ओके, अदरवाइज हम आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे तो हम डिटेल डिस्कस करेंगे. एक्चुअली एटम्स जो होते हैं वो कभी भी स्टेशनरी होते ही नहीं.
हम बोलते हैं कि कोई चीज स्टेशनरी है, सपोज ये चेयर स्टेशनरी है, लेकिन ये चेयर जो एटम से बनी हुई है वो स्टेशनरी नहीं है, तो फिर क्यों पूरा का पूरा स्टेशनरी दिख रहा है? क्योंकि उनकी मूवमेंट इतनी नेग्लिजिबल है कि आवर आईज कैन नॉट डिफाइन इट, ओके, डिफाइन ही नहीं कर सकते, नहीं तो अदरवाइज ऑल द एटम्स आर वाइब्रेटिंग मोशंस, ओके, वो वाइब्रेशन कर रहे हैं, ओके, सो उनकी कोई ना कोई मोशन होगी, से वाइब्रेटरी मोशन होगी, रोटेशनल मोशन होगी, लीनियर मोशन होगी, सो कोई ना कोई मोशन भी होगी, ओके, सो मोशन होगी, दैट मींस काइनेटिक एनर्जी भी होगी, सो पोटेंशियल एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, ओके, देन वेरी ऑल अदर टाइप्स ऑफ एनर्जी जितने भी पॉसिबल है, ओके, से मैकेनिकल एनर्जी भी होगी, मैकेनिकल एनर्जी से रोटेशनल एनर्जी भी होगी, क्योंकि एटॉम्स तो अंदर तो रोटेट भी कर रहे होंगे, मतलब कल बताया था, ओके, माइक्रोस्कोपिकली रोटेट कर रहे हैं, नॉट मैक्रोस्कोपिकली, ओके, माइक्रो में हमें नहीं दिख रहा रोटेट कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में रोटेट कर रहे हैं, ओके, सो रोटेट भी कर रहे होंगे। वैसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी होगी, मतलब सपोज ये 30 डिग्री सेल्सियस है, तो ये 30 डिग्री सेल्सियस इलेक्ट्रिसिटी देकर ये रीच हुआ है, नहीं तो पहले ये एक्चुअल था से 22 डिग्री सेल्सियस, लेकिन 22 से 30 कैसे रीच हुआ है? इलेक्ट्रिकल हीटिंग से, तो उसके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी होगी। हम डिस्कस करना नहीं चाह रहे हैं कि कैसे वो रीच हुआ होगा, लेकिन उसके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी होगी, ओके, जैसे कि हमारी बॉडी में भी इलेक्ट्रिसिटी होती है, हम बायोलॉजी में पढ़ते थे, इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होता है, ओके, सेल में न्यूरॉन्स वो सब देखते थे हम, सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी। तो ऑल द टाइप्स ऑफ एनर्जी, ये जितनी भी पॉसिबल एनर्जी है, ये सारी एनर्जी का अगर सम अप कर दे हम, सबकी सारी एनर्जी को, न्यूक्लियर एनर्जी होगी, ओके, ये सारे एटॉम्स है, तो ये एटॉम्स के अंदर प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में रिपल्जन होगा, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन होगा, तो ये अट्रैक्शन फोर्स, रिपल्जन फोर्स, जितने भी फोर्सेस और जितने भी एनर्जी है ये वाटर के पास, ये सबको सम अप कर दे, सबका प्लस कर दे, सो ऑल दोज थिंग्स प्लस करेंगे तो हम एक ही बोल रहे हैं, दैट इज इंटरनल एनर्जी। उसकी केमिकल एनर्जी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी, सब कुछ उसमें ही आ गया, दैट इज इंटरनल एनर्जी। ऑल एनर्जी को अगर सम अप कर दे हम, तो वो अंदर सब्सटेंस के अंदर स्टोर्ड है, ओके, दैट इज द इंटरनल एनर्जी। अंडरस्टूड? नाउ हमने क्या बोला? internal energy is the state function. So state function means what? State function means does not depend on the path followed, it is only dependent on the state, okay, state पर ही depend है, इसलिए state function बोलते हैं। So this is the internal energy, okay, तो internal energy है। अब हम कहने क्या वाले हैं, हमें प्रूव करना है कि इसे इंटरनल एनर्जी इज अ से स्टेट फंक्शन। प्रूव करना इन द सेंस हमें डिस्कस करना है, बता ही दिया है हमें कि वो स्टेट फंक्शन है, लेकिन हमें वो भी डिस्कस करना है कि इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने डिस्कस किया कि इंटरनल एनर्जी क्या है, ओके। नाउ नेक्स्ट वी विल डू से हम डिस्कस करेंगे इंटरनल एनर्जी से अगेन वही सेम एग्जांपल, वाटर ले लिया हमने, ग्रीन कलर का वाटर, ओके। सो वाटर जो हमने ले लिया है, अब सब्सटेंस की ये सिस्टम है, ओके, सिस्टम की इंटरनल, सिस्टम की मतलब सिस्टम जो सब्सटेंस से बना हुआ है, ओके, उसकी इंटरनल एनर्जी वी कैन चेंज बाय 3 वेज। 3 वेज में हम इंटरनल एनर्जी को चेंज कर सकते हैं। पहला है उसकी जो इंटरनल एनर्जी है, पहला है मास, ओके, मास। तो मास मतलब क्या? तो भाई जैसे अभी ये वॉल्यूम कितना है, से 200 ml वॉल्यूम है, ओके, तो मैंने ऊपर से और 100 ml डाल दिया, 200 ml था और मैंने और 100 ml ऊपर से डाल दिया, तो वो कितना हो गया? 300 ml। तो जितनी 200 ml की इंटरनल एनर्जी थी, क्या उतनी ही 300 ml की होगी? नहीं, क्योंकि 100 ml के पार्टिकल्स ऐड हुए हैं अंदर, वाटर पार्टिकल्स, तो उनकी भी खुद की इंटरनल एनर्जी होगी, तो इंटरनल एनर्जी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। सो बाय exchanging mass we can change the internal energy. We can remove also mass, okay, अभी internal energy है 200 ml की इंटरनल एनर्जी कुछ है, ओके। एनर्जी मीन्स वो देखो बोल रहे हैं हम इंटरनल एनर्जी, तो इंटरनल एनर्जी मतलब यूनिट क्या होगा? यू, डिनोटेशन नहीं है, यूनिट,
जूल, एनर्जी का यूनिट जूल। ओके, फिर तुम्हें बिगर यूनिट लेना हो तो से किलो जूल, और बिगर लेना हो तो मेगा जूल। ओके, सो वो गीगा टेरा, वो जो जहां जाना हो वहां हम जा सकते हैं कितना बड़ा यूनिट, बट मेनली हम यूनिट क्या लेंगे, एनर्जी का यूनिट जूल। ओके, सो अगेन दो टाइप की प्रॉपर्टीज होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। हमारे सिलेबस में नहीं है, अदरवाइज वेरी गुड कंसेप्ट, जब आएगा तब डिस्कस करेंगे, अदरवाइज मैं ऊपर से थोड़ा बहुत बता दूंगा उसके बारे में। ओके, सो ये आ गया हमारा m। अब मैं बोल रहा था कि हमने अगर m ऐड किया तो इंटरनल एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई। वैसे ही अगर हम m निकालेंगे, मतलब कि जितना है उसमें से हम m निकाल देंगे तो भी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। यस, सो इंटरनल एनर्जी कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड बाय चेंजिंग द क्वांटिटी और से चेंजिंग द मास ऑफ द सब्सटेंस। डन। नेक्स्ट आता है Q। ओके, दैट इज Q। Q मतलब क्या, से हीट। सो से मैंने यही सब्सटेंस को गर्म कर दिया। ओके, गर्म कर दिया, यहाँ पर अगेन गैस स्टोव से गर्म किया या किसी से भी गर्म किया, लेकिन मैंने गर्म किया मतलब क्या किया, हीट दिया। ओके, हीट वाटर को दे दिया, तो हीट वाटर को दे दिया तो क्या उसकी इंटरनल एनर्जी उतनी ही रहेगी, नहीं। ओके, ऑब्वियसली वो तो टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, हीट दिया तो टेम्परेचर बढ़ने लगा, तो टेम्परेचर बढ़ने से तो कितना कुछ होगा। जैसे ही हीट देना शुरू किया, अंदर के मॉलिक्यूल्स है वो फास्टली मूव करना स्टार्ट करेंगे, वो फास्टली मूव करना स्टार्ट करेंगे, कॉलिजन होगा और उससे ही तो टेम्परेचर बढ़ेगा। ओके, तो मतलब एट दी एंड इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी अगर मैंने हीट दी तो। सो इफ आई एम गिविंग द हीट, अगेन इंटरनल एनर्जी इज इंक्रीजिंग। क्या बर्न करेंगे तो, नहीं वाटर को बर्न करने को नहीं बोल रहा हूं मैं, वाटर को हीट देने को बोल रहा हूं। सपोज ये मेरा बर्नर है, सो बर्नर से वाटर को हीट देने को बोल रहा हूं। ये हम हीट दे रहे हैं, जैसे कि पानी गर्म कर रहे हैं नहाने के लिए, ऐसे बोल रहा हूं। ओके, वाटर जो है वो वही है, वाटर है सपोज 30 डिग्री सेल्सियस का वाटर है, अभी मुझे नहाना है 80 डिग्री सेल्सियस से। ओके, तो मैं गर्म कर रहा हूँ पानी को, दैट्स इट, वही बता रहा हूँ। सो जो 30 डिग्री सेल्सियस का जो वाटर था उसकी जो इंटरनल एनर्जी थी और अब पानी गर्म हो गया है, उसकी जो इंटरनल एनर्जी होगी, क्या उसमें डिफरेंस होगा, होगा। ओके, उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, क्यों, क्योंकि उसको हमने हीट दी है इसलिए। ओके, अगर ऐसा समझो कि मैंने इसके आसपास ये पूरे पानी के उसको हमारे सिस्टम को मैंने रख दिया फ्रीजर में। ओके, वो फ्रिज में, ओके फ्रिज में रख दिया, तो अभी वहां पर तो सपोज आइस के बीच में रख दिया। ओके, यहाँ आसपास पूरा आइस है, आइस 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 है। ओके, सो पूरा आइस है तो होगा क्या, ये 30 डिग्री सेल्सियस पे था पहले, कहाँ गया, हाँ 30 पे था, अभी आइस रख दिया, आइस तो 0 डिग्री सेल्सियस पे होगा। ओके, दैट मीन्स अब हीट का ट्रांसफर कहाँ से कहाँ होगा, अंदर से बाहर। ओके, फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड होगा, तो दैट मीन्स वो 30 से भी कम हो जाएगा टेम्परेचर से मान लो 10 डिग्री 15 डिग्री हो गया। ओके, कितना हो गया, 15 डिग्री, और ये 15 डिग्री होने में ये बाहर वाला आइस भी मेल्ट हो गया, क्योंकि आइस को हीट मिलेगी तो वो मेल्ट हो जाएगा। ओके, हमारा पर्पस आइस के लिए नहीं है, हमारा पर्पस वाटर के लिए है, तो वाटर का टेम्परेचर डाउन हो गया बाय रिमूविंग दी हीट। तो हीट देखो, पहले हमने मास को डिस्कस किया, फिर हमने हीट को डिस्कस किया कि हीट डालेंगे तो भी हीट एक्सचेंज होगा तो भी इंटरनल एनर्जी चेंज आएगा, देयर विल बी चेंज इन द इंटरनल एनर्जी। थर्ड, इफ वी आर डूइंग वर्क, ओके, देन आल्सो इंटरनल एनर्जी कैन बी चेंज्ड। ओके, सो अगर हम वर्क करते हैं तो भी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अभी हम नेक्स्ट उसका टॉपिक देखने ही वाले हैं, बट कहने का मीनिंग क्या है, देयर आर 3 मेथड्स, देयर आर 3 ways by which we can change the internal energy of the substances or say of the system. So one method is by exchanging mass, another is exchanging heat, and third one is the exchanging by work. Okay, say addition of mass, addition of heat, addition of work, or say removal of mass, removal of heat and removal of work. जो हमारे टर्मिनोलॉजी देखो, अभी साइन कन्वेंशन जो बुक में गिवन है वही फॉलो करना, अदरवाइज हर रेफरेंस बुक में अलग अलग साइन कन्वेंशन फॉलो होता है।
बट एज फार एज जैसे मैं इंजीनियरिंग में हम कैसे यूज करते थे कि अगर हीट एक सिस्टम को हीट मिल रही है, ओके जैसे इससे पहले भी बताया हीट मिल रही है, मतलब हमारे पॉकेट में कोई पैसे डाल रहे हैं तो हमारा अकाउंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, मतलब पैसे हमारे अकाउंट में बढ़ जाएंगे, पैसे डाल रहे हैं इसलिए। तो हीट अगर डाल रहे हैं सिस्टम में सो क्यू क्या होगा, प्लस होगा। अगर इफ हीट इज एडेड टू दिस सिस्टम सो क्यू विल बी पॉजिटिव। इफ हीट इज रिमूव्ड फ्रॉम दिस सिस्टम, ओके याद रख लेना, इफ क्यू इज एडेड, और हमें एम क्यू और डब्ल्यू, डब्ल्यू इन द सेंस वर्क, जो अभी अभी हम फिजिक्स में इतना कुछ वर्क किया हमने, ओके सो वैसे ही केमिस्ट्री में का भी वर्क है। सो मास के लिए हमें कुछ डिस्कस नहीं करना है हमारे सिलेबस में, हमें ये दोनों के लिए डिस्कस करना है, दैट इज द हीट एंड द वर्क। सो इफ क्यू इज एडेड द सिंबल इज प्लस, ओके, एंड इफ क्यू इज रिमूव्ड द सिंबल इज माइनस, ओके। क्यू ऐड करेंगे तो प्लस और क्यू रिमूव करेंगे तो माइनस, ओके। वैसे ही W के लिए अगर देखें तो, अब मैं नहीं बता रहा दूसरे रेफरेंस बुक की बातें एंड ऑल, क्योंकि फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे, ओके। कहने का मीनिंग क्या है, इट इज जस्ट अ कन्वेंशन, ओके। मुझे अगर ऐसा लेना होगा, नहीं भाई मैं तो Q जो अंदर डाल रहे हैं ना उसको नेगेटिव लूंगा और जो निकाल रहे हैं उसको पॉजिटिव लूंगा, तो मैं वो भी ले सकता हूँ, लेकिन फिर पूरी कैलकुलेशन में, पूरे थर्मोडायनेमिक्स में मुझे वही साइन कन्वेंशन यूज करना पड़ेगा, ओके। तो मेरे जो आंसर्स है वो आंसर सही आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि एक न्यूमेरिकल में मैंने ऐसा बोला कि एडिशन ऑफ Q इज पॉजिटिव एंड रिमूवल ऑफ Q इज नेगेटिव, और दूसरे न्यूमेरिकल में मैं बोल रहा हूँ एडिशन ऑफ Q इज नेगेटिव और रिमूवल ऑफ Q इज पॉजिटिव, वैसा वो गलत हो जाएगा। कोई भी एक चीज पकड़ के आगे बढ़ते रहो। सो तुम्हें कोई रेफरेंस बुक कुछ देखने की जरूरत नहीं है, यू फॉलो जस्ट NCERT, ओके। सो addition of Q, Q is added that is plus, Q is removed that is minus। वैसे ही if we are doing work on the system, मतलब सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहे हैं, ओके ऊपर वर्क कर रहे हैं, तो इट विल बी से ऊपर वर्क कर रहे हैं, मतलब डाल रहे हैं सिस्टम के अंदर वर्क डाल रहे हैं, ऊपर वर्क कर रहे हैं, सो दैट विल बी से पॉजिटिव। और सिस्टम से वर्क हो रहा है, सिस्टम से वर्क हो रहा है, मतलब सिस्टम वर्क कर रहा है। पहले हमने वर्क किया सिस्टम पर और अब सिस्टम वर्क कर रहा है, से मे बी हम पर और एनवायरनमेंट पर, किसी पर भी, बट सिस्टम खुद वर्क कर रहा है, ओके। जैसे कि से मोबाइल हम चलाते हैं और से अब अगर तुम कॉन्शियस ना रहे तो मोबाइल तुम्हें चलाएगा ओके कि भाई अच्छा पढ़ने बैठे हो और एक मैसेज आ गया, ओके तुम बैठ गए, वो मैसेज देखा, ये वो हो गया, टाइम वेस्ट, 10 मिनट्स हो गई, ओके 30 मिनट्स ही तुमने रखा था, उसमें से 10 तो चली गई, लाइक दैट। सो से अलार्म रखा, तो अलार्म हम रख रहे हैं एट द टाइम वी आर यूजिंग द फोन, बट जब अलार्म बजेगा तो मोबाइल इज यूजिंग अस, ओके। वही हुआ ना कि वो हमें उठा रहा है, ओ भाई उठ जाओ मॉर्निंग हो गई, लाइक दैट, ओके। सो वर्क इज डन ऑन दिस सिस्टम दैट इज प्लस, work is done by the system that is minus, okay, on the system and by the system, okay। So that is the thing, ये हमें याद रखना है। just I will tell you about the जो हमारी बुक में भी कन्वेंशन यूज किया गया है वो, इंटरनल एनर्जी एज अ स्टेट फंक्शन। चलो भाई स्टेट वेरिएबल, सो वही चीज हम बात कर रहे हैं। डेरिवेटिव पे पहुंच गए ये भाई, तो इनटू द सिस्टम वर्क इज डन ऑन, अरे okay, see heat passes into or out of the system, work is done on or by the system and matter enters and leaves, that is matter in the sense mass, okay, mass enters or leaves, that is the thing। वैसे ही हम चेंज कर सकते हैं, okay, all those things we will see afterwards, internal energy UA। so one way
another way, I just want to tell you the directions, but इन लोगों ने बहुत दूर चले गए हैं, लेकिन फिर मेन बात बाद में बताएंगे आई थिंक सो. हाँ वो बाद में ही बता रहे हैं, सो कोई बात नहीं, मैं पहले बता दे रहा हूँ क्योंकि दैट इज इम्पोर्टेंट. ओके, सो याद रखना क्या, इफ वर्क इज डन ऑन दिस सिस्टम दैट इज पॉजिटिव एंड वर्क इज डन बाय दिस सिस्टम दैट इज नेगेटिव. ओके, दैट यू रिमेंबर. अदरवाइज ये लोग जब बताएंगे तब बताएंगे, बट अभी के लिए तुम ये याद रखो. ओके, सो वर्क इज डन ऑन दिस सिस्टम that is positive, work is done by the system that is negative. Okay, so that is the convention we are going to use. Okay, समझ में आ गया इतना. इंटरनल एनर्जी थोड़ा बहुत हमने डिस्कस किया. आफ्टर दैट इंटरनल एनर्जी कैसे, इट इज अ स्टेट फंक्शन, डिपेंड नहीं करता कि तुम स्टेट ए से स्टेट बी पर आए, कैसे आए, क्या किया, डज नॉट मैटर. बस इंटरनल एनर्जी है कितनी, इतनी है. ओके, टेम्परेचर है कितना, इतना है. ओके ओके, इंटरनल एनर्जी, मास, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, ये सारे ही क्या है, स्टेट फंक्शंस. ओके, बट currently we are discussing about the internal energy. Again one experiment we will do. So अब मास के रिलेटेड तो हमें कुछ ज्यादा देखना नहीं है. So सेम चीज अभी हम डिस्कस कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू Q एंड W, इंटरनल एनर्जी. सो इंटरनल एनर्जी हम डिस्कस कर रहे हैं. सो से मान लो ये एक्सपेरिमेंट किया था भाई जेपी साहब ने, तो जेपी नहीं लिख रहा हूँ मैं, डायरेक्टली लिख रहा हूँ जूल. ओके, सो जूल ने एक्सपेरिमेंट किया था. जूल इज साइंटिस्ट, उसी ने ये सब यूनिट्स दे दिए हैं, यूनिट जूल. ओके, सो ही वाज अ साइंटिस्ट. सो सपोज क्या उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया. मान लो उन्होंने एक लिया है एडिएबैटिक सिस्टम. व्हाट इट इज, अभी आएगा, मतलब मैंने नहीं बताया. से आइसोलेटेड सिस्टम, तो व्हाट इट इज, कैन नॉट ट्रांसफर, कैन नॉट एक्सचेंज. यस, सो ले लिया, सपोज थर्मोस ले लिया हमने, आइसोलेटेड सिस्टम. ऐसे हमने एक थर्मोस ले लिया है, और थर्मोस के अंदर भी एक बॉडी है लाइक दिस. ओके, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है, इंसुलेशन कर दिया है. इंसुलेशन किया है, दैट मीन्स के हीट कैन नॉट गो आउट एंड कैन नॉट कम इन ऑल्सो. डन, मैंने इंसुलेशन कर दिया. सो इंसुलेशन कर दिया है और ऊपर से बंद कर दिया है, बंद भी कर दिया. सो भाई नहीं मास अंदर बाहर हो रहा और नहीं हीट भी अंदर बाहर हो रहा. डन. ओके, अब क्या कर रहे हैं, उन्होंने एक शाफ्ट लिया, शाफ्ट मतलब रॉड. ये शाफ्ट लिया, और ये शाफ्ट कैसा था, जस्ट लाइक उनके ब्लेड्स थे, शाफ्ट के ऊपर ब्लेड्स लगे हुए थे, जैसे कि ये शाफ्ट है और उसके ऊपर ब्लेड लगे हुए हैं. ओके, लाइक दैट, जस्ट लाइक फैन. ओके, सो से ये एक ब्लेड है. उन्होंने ऐसे ब्लेड्स लिए, अब वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने पानी भर दिया.
देन वाटर फील्ड, वाटर का मास फिक्स्ड है, कोई भी ले लो, से m इज इक्वल्स टू से 200 ml। एक स्टेट है, स्टेट ए, तो मास है 200 ml, टेम्परेचर है स्टेट ए पर 30 डिग्री सेल्सियस, दैट्स इट, और किसी की अभी हमें जरूरत नहीं है। फिर वो कर क्या रहे हैं, ये जो रॉड है उसको वो घुमा रहे हैं ऐसे, ओके। सो रॉड घुमा रहे हैं मतलब से रोटेशन हो रहा है, इट इज अ मैकेनिकल वर्क, रॉड घुमाना इज अ मैकेनिकल वर्क, ओके। जैसे कि हम बाइक की किक मार रहे हैं, मैकेनिकल वर्क, बाइक आगे जा रही है तो ट्रांसलेटरी मोशन हो रही है, ओके, दैट इज मैकेनिकल वर्क। ये रोटेशनल मोशन हो रही है, मैकेनिकल वर्क, ओके। सो मैकेनिकल वर्क हो रहा है। हमने हीट की बात की थी, तो हीट तो ट्रांसफर नहीं हो रही है, हमने बंद कर दिया, इंसुलेटेड कर दिया। सो वर्क, यहाँ पे वर्क डन हो रहा है। हमने क्या बोला, इंटरनल एनर्जी कैन बी चेंज्ड बाय मास से वर्क एंड हीट, तो अभी हम वर्क से करने की ट्राई कर रहे हैं, ओके। और इंटरनल एनर्जी जिसकी हम बात कर रहे हैं, सो वो भी है से यू ए, कुछ भी है से 100 किलो जूल, ओके, 100 किलो जूल है इंटरनल एनर्जी एट स्टेट ए, ओके। अब हमने शाफ्ट को, वो उन्होंने मतलब ऐसे शाफ्ट को क्या किया, घुमाया, बहुत घुमाया, बहुत घुमाया, बहुत घुमाया। जैसे कि हम बटर मिल्क बनाते हैं, हम तो नहीं बनाते अब, लेकिन जो गांव में बटर मिल्क बनाते हैं, ओके, अभी तो मशीन से बनता है, लेकिन गांव में अभी भी ऐसे ही बनता है, ओके। तुमने देखा ही होगा, यशोदा मैया बनाते हैं, मक्खन निकलता है, कान्हा जी भागते हैं, सीरियल्स में देखा हो। सो सिंपली रॉड को तुम आगे पीछे घुमा रहे हो। सो बटर मिल्क बना रहे हैं, वैसे ही अब बटर मिल्क रह रहा है माइंड में, तो वैसे ही कर रहे हैं, ओके हम। सो मतलब कि हम मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं, ओके। क्या कर रहे हैं, मैकेनिकल वर्क। सो जैसे ही हमने मैकेनिकल वर्क किया, क्या होगा, अंदर का पानी भी गोल गोल घूमेगा, पूरा घूमेगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई अंदर के पार्टिकल्स की। तो क्या टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, ओके। सो हमने मैकेनिकल वर्क किया, इसके लिए अब कंटिन्यूअसली वर्क करते ही जा रहे, आधे घंटे तक हमने मैकेनिकल वर्क किया और हम एक स्टेट पे पहुंच गए। अब चेक किया तो हम पहुंच गए स्टेट बी पर। सो एम तो चेंज होगा क्या भाई, वो तो उतना ही है, ओके। बाहर तो हमने कुछ निकाला नहीं। बी पर पहुंच गए, सो 30 से हो गया से 35 डिग्री सेल्सियस, और से यू ए हो गया है, अगर टेम्परेचर बढ़ गया है तो इंटरनल एनर्जी भी बढ़ गई से 150 किलो जूल। डन, समझ में आया, सिंपल एक्सपेरिमेंट है, ओके। अब क्या बोल रहे हैं वो, कि ये हमने वर्क किया, कौन सा वर्क किया, मैकेनिकल वर्क किया, और ऐसे किया, ये एक सेटअप था। फिर से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, फिर से, ओके। तो वापस स्टेट ए की कंडीशन यही है। अब ये शाफ्ट नहीं डाल रहे हम, ओके। अब हम इलेक्ट्रिकल वर्क दे रहे हैं, इलेक्ट्रिकल वर्क, ओके। क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल वर्क। इलेक्ट्रिकल वर्क मतलब इसको हम घुमा रहे थे, तो ऐसा समझो कि मशीन के साथ कनेक्ट कर दिया, मशीन को इलेक्ट्रिसिटी दे दी, तो मशीन घूम रहा है, फैन के साथ कनेक्ट कर दिया, तो फैन घूम रहा है, साथ साथ में ये भी घूम रहा है। तो अब ये मैकेनिकल वर्क तो है, लेकिन आया कहां से, इलेक्ट्रिसिटी से आया है मैकेनिकल वर्क। तो मेन एनर्जी कौन सी हो गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। डन। पहले हमारी मसल एनर्जी थी, वो कन्वर्ट हो गई मैकेनिकल में, और फिर वो अंदर जा रही है, ओके। अभी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, वो कन्वर्ट हो गई मैकेनिकल में, और वो वहां जा रही है। सो अब इलेक्ट्रिकल वर्क हमने दिया, तो इलेक्ट्रिकल वर्क दिया, उसके बाद भी अगर हमने इलेक्ट्रिकल वर्क इनफ अमाउंट में दिया, और अब स्टेट बी पर पहुंचे जब 35 डिग्री सेल्सियस रीच हो गया, और फिर हमने इलेक्ट्रिकल वर्क बंद कर दिया, तब हमने इंटरनल एनर्जी देखी, तो वो भी कितनी आई, 150 किलो जूल ही आई। जूल ने एक्सपेरिमेंट किया तो उतनी ही आई, ओके। दैट मीन्स कि तुम इलेक्ट्रिकल वर्क करो, तुम मैकेनिकल वर्क करो, और यू डू वर्क बाय एनी हाउ, तुम कैसे भी वर्क करो, बट द इंटरनल एनर्जी वैल्यू, द टेम्परेचर वैल्यू, ओके, डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड। मतलब तुमने मैकेनिकल वर्क किया, तुमने इलेक्ट्रिकल वर्क किया, तुमने पैडल वर्क किया, पैडल व्हील वर्क भी होता है, मतलब पैडल व्हील वर्क मतलब क्या, ऐसा ही सेम सेटअप होता है। यहाँ पर से ये ऐसे शाफ्ट है, तो शाफ्ट में यहाँ पर ऐसे ऐसे होता है, ऐसे,
ओके, और ये शाफ्ट को सपोज यहाँ पर पैडलिंग जैसा होता है, ओके। सो ये शाफ्ट को अगर हम ऐसे राउंड एंड राउंड घुमाएंगे, ये एक ऐसे है, सो इसको ऐसे 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 घुमाना है, ऐसे गोल गोल ऐसे घुमाएंगे ना, तो ये क्या होगा, ये ऐसे 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 गोल गोल, तो इसके जैसा ही तो हुआ। यहाँ हम ऐसे ऐसे कर रहे थे और ये घूम रहा था, तो यहाँ भी हम रोटेशन दे रहे हैं और ये घूम रहा है, ओके। इन द सेंस हम कर क्या रहे हैं इन द एंड, कि वर्क प्रोवाइड कर रहे हैं। सो एज वी, देखो यहाँ पे जो पहले हमने डिस्कस किया वो भी अंदर आ गया, क्या कि इफ वी आर डूइंग वर्क ऑन दिस सिस्टम, ये ऑन दिस सिस्टम वर्क है, ओके। तो ऑन दिस सिस्टम अगर हम वर्क कर रहे हैं तो इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है, तो देखो चेंज हो रही है, 100 से 150 हो गई इंटरनल एनर्जी चेंज हो गई। और यहाँ पर हम उससे भी पहले की बात भी करेक्ट प्रूव कर रहे हैं, क्या कि द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी डज नॉट, इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन, क्यों, क्योंकि उसके अंदर जो ये चेंज आया है डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड। तुम इलेक्ट्रिकल वर्क दो, मैकेनिकल वर्क दो, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं। अंडरस्टूड? तो ये दोनों चीजें हमने प्रूव की वर्क को कंसीडर करके, ये समझ में आ गया। अब हीट से करते हैं, हीट क्यूब। सो हीट से करते हैं तो ऐसा समझो कि ये सब हटा दिया हमने, ये फैन और ये जो शाफ्ट वाफ्ट है सब हटा दिया, ओके, सब कुछ हमने हटा दिया और से सेम वे वाटर फिल अप किया हुआ है और ये कंडीशन वैसी ही, ये कंडीशन वैसी ही है, बट अब हम क्या कर रहे हैं, हीट से चेंज लाने का ट्राई कर रहे हैं। ये कंडीशन वैसी ही है, ओके। अब हम वर्क देने वाले नहीं, अब हम क्या देंगे, हीट देंगे। तो क्या करेंगे, ये जो इंसुलेशन है यहाँ पर, ये इंसुलेशन मैंने यहाँ से हटा दिया और वहां पर पानी भर दिया पीले कलर का, ये जगह में मैंने क्या भर दिया, हॉट वाटर। हॉट वाटर से 90 डिग्री सेल्सियस है, डन। 30 डिग्री टेम्परेचर था अंदर के पानी का, हॉट वाटर मैंने फील कर दिया है। अब क्या होगा, इट विल गो इनसाइड, हीट तो जाएगी अब, क्यों, क्योंकि ये जो इंसुलेशन था वहां से मैंने इंसुलेटिंग मटेरियल को निकाल कर क्या डाल दिया, हॉट वाटर डाल दिया। सो हीट विल गो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। सो कितने, 90 डिग्री से 30 डिग्री में हीट जाएगी। तो अगेन सपोज ये 35 डिग्री सेल्सियस हो गया एंड वो 90 था, तो 90 का से 85 हो गया, 80 हो गया, वॉट एवर, वो भी जो भी हुआ, लेकिन हमारा 35 रीच हो गया, तब जाके हमने वापस पानी निकाल दिया, ओके। अब देखा हमने इंटरनल एनर्जी की वैल्यू, अगेन सेम ही आई, टेम्परेचर उतना लाए हम, ओके। फिर हमने इंटरनल एनर्जी की वैल्यू देखी, अगेन वही आई 150 किलो जूल, डन। अब हीट हमने यहाँ पे ऐड की, हीट रिमूव कर रहे हैं, चलो से हमने हॉट वाटर है और रिमूव करना है, तो क्या भर दे वहां पर, कोल्ड वाटर भर दो, या फिर डायरेक्टली वी आर प्लेसिंग से आइस। सो वी हैव फील्ड से आइस, आइस भर दिया, तो आइस भर दिया तो अब क्या होगा, आइस विल गेट द हीट फ्रॉम 30 डिग्री सेल्सियस वाटर, यही है, लेकिन 30 डिग्री सेल्सियस वाटर से वो आइस हीट लेगा और वो खुद मेल्ट हो जाएगा, लेकिन उसका नहीं, हम अंदर वाले का देख रहे हैं। सो उसने हीट दी, मतलब ये जो हमारा 30 डिग्री सेल्सियस है वो 30 डिग्री सेल्सियस अब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ओके। अगेन चेंज आ जाएगा इंटरनल एनर्जी में, अब ये 150 नहीं होगा, अब तो वो कम हो जाएगा, ओके, से 50 किलो जूल हो गया। बट कहने का मीनिंग क्या है कि वी कैन चेंज द इंटरनल एनर्जी बाय डूइंग वर्क on the system, by doing work on the system, by the system, or by say heat addition or say removal, done। समझ में आया? सो इससे हमें पता चल रहा है कि इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन, डन। अब यही बात
हम फॉर्मूला के बेस पे लिखते हैं, जो जूल ने बोली वही चीज। ओके, तो अगर मैंने क्या बोला, अगर हमने जो हीट डाली, फैन थोड़ा बंद कर दे, ठंडा हो गया है। ओके, तो हम क्या बात कर रहे हैं कि जो हीट मैंने डाली तो मतलब प्लस क्यू। ओके, उसकी वजह से इंटरनल एनर्जी चेंज हुई थी। सपोज मैंने हीट निकाल ली, सो दैट इज माइनस क्यू, उसकी वजह से भी इंटरनल एनर्जी चेंज हुई। मतलब कि तुम प्लस क्यू लो या माइनस क्यू लो, देयर विल बी चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ओके, दूसरा पहले वाला केस से हम वर्क कर रहे हैं, ओके, वर्क डन ऑन दिस सिस्टम, देयर विल बी चेंज इन द इंटरनल एनर्जी। वर्क डन बाय द सिस्टम, अगेन देयर विल बी चेंज इन द इंटरनल एनर्जी। मतलब कि हीट से भी इंटरनल एनर्जी का चेंज हो रहा है, वर्क से भी इंटरनल एनर्जी का चेंज हो रहा है। तो ये मेरा सिस्टम है, उसकी इंटरनल एनर्जी में टोटल चेंज कितना हो रहा है, तो मैं बोल रहा हूं सिंपली कि से डेल्टा यू इज नथिंग बट चेंज इन द इंटरनल एनर्जी। चेंज इन द इंटरनल एनर्जी मतलब से फाइनल इंटरनल एनर्जी से U2 माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी से U1। अब इसकी वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव आए, दैट मीन्स तुम्हारी इंटरनल एनर्जी बढ़ी है। इसकी वैल्यू नेगेटिव आए, दैट मीन्स उसकी इंटरनल एनर्जी कम हुई है। वॉट एवर, बट चेंज इन द इंटरनल एनर्जी will be delta U. Okay, so delta U will be equals to, delta U means this, but delta U is equals to जो भी तुमने Q ऐड की या रिमूव की उसकी वजह से चेंज होगा, so से Q, और जो भी W तुमने ऑन द सिस्टम किया और बाय द सिस्टम किया उसकी वजह से भी डेल्टा U चेंज होगा, so W की वजह से भी डेल्टा U चेंज हो रहा है, Q की वजह से भी डेल्टा U चेंज हो रहा है। तो मतलब कि तुम जितना भी Q अंदर डाल रहे हो, बाहर निकाल रहे हो, जितना भी वर्क डन बाय द सिस्टम और ऑन द सिस्टम कर रहे हो, उसकी वजह से डेल्टा U चेंज होगा। इंटरनल डेल्टा U चेंज होगा मतलब कि डेल्टा U बढ़ेगा या कम होगा, दैट इज देयर विल बी से चेंज इन द इंटरनल एनर्जी। सो मैं टोटल मुझे सिस्टम का ढूंढना हो तो कैसे ढूंढूंगा कि भाई जितनी भी हीट में प्लस माइनस कर रहा हूँ वो, और जितना भी वर्क में प्लस माइनस ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम कर रहा हूँ वो दोनों का एडिशन कर दूंगा। वो जितना होगा उतना ही इंटरनल एनर्जी चेंज होगा। समझ में आया? क्या बोला मैं कि हमने अभी डिस्कस किया कि हमारा जो Q है वो हमारा जो हीट है दैट इज Q, उसकी वजह से इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है। ओके, हीट डाले तो प्लस Q, हीट रिमूव करे तो माइनस Q। सो Q की वजह से इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है। सो यहाँ पे Q रहेगा, यहाँ पर Q रहेगा एंड उसकी वजह से डेल्टा U होगा। फिर हमने बोला कि वर्क डन ऑन द सिस्टम, उसकी वजह से भी इंटरनल एनर्जी चेंज हुई। वर्क डन बाय द सिस्टम करेंगे तो भी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। तो हम बोल रहे हैं कि अगर वर्क डन बाय द सिस्टम है तो भी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। तो अगर मुझे पूरे सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कितनी चेंज हो रही है वो मुझे अगर जानना हो कि भाई कितना चेंज आ रहा है उसकी इंटरनल, पानी था पहले से 30 डिग्री सेल्सियस पे, अभी लास्ट में वो या तो 35 पे है या फिर 25 पे है, लेकिन वो जो भी है वो Q है, या तो प्लस Q हुआ होगा, माइनस Q हुआ होगा, प्लस W हुआ होगा, माइनस W हुआ होगा, वो जो भी हुआ होगा उसका सब कुछ, क्योंकि Q की वजह से चेंज हो रहा है और W की वजह से चेंज हो रहा है, तो मैंने जो भी Q का चेंज था वो और जो भी W हमने लिया है वो दोनों का क्या कर दिया, प्लस कर दिया, क्योंकि वो दोनों की वजह से ही चेंज हो रहा है U में। सो वो दोनों का प्लस कर दिया, सो दैट विल गिव मी द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी। समझ में आया? और इसका दूसरा कहने का मीनिंग ये भी है कि अगर इंटरनल एनर्जी को चेंज करना है सो देयर विल बी 3 थिंग्स। ओके, क्या, कौन सी 3 थिंग्स? मास, हीट एंड वर्क। सो मास की तो हम अभी बात नहीं करने वाले, वी आर एज्यूमिंग दैट वी आर considering the constant mass system, मतलब mass is not going inside or outside. ओके, मास वैसे का वैसा ही रह रहा है, यू कैन से क्लोज सिस्टम और यू कैन से आइसोलेटेड सिस्टम। ओके, जिसमें मास क्या रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है। सो मास को हम चेंज करने वाले नहीं है पूरे के पूरे कंसेप्ट में। सो दैट मींस चेंज क्या होगा, Q एंड W। तो Q और W में जो भी चेंज आएगा, प्लस Q प्लस W माइनस Q माइनस W, उसकी वजह से जो भी चेंज आएगा वो सारे के सारे चेंजेस की वजह से इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। एंड चेंज इन द इंटरनल एनर्जी दैट इज U2 minus U1, in short it can be written as delta U, and this is the our first law of this chapter, that is the first law of thermodynamics. And first law of thermodynamics is nothing but it is similar to the
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जो एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, जो हम बोलते हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो ये भी वही कह रहे हैं कि जो इंटरनल एनर्जी है उसमें कैन नॉट बी जनरेटेड, मतलब अगर ऐसा समझो, जनरेट भी नहीं होगी और रिड्यूस्ड भी नहीं होगी, डिस्ट्रॉय भी नहीं होगी। ऐसा मान लो कि मैंने कोई क्यू का चेंज नहीं किया सिस्टम में, मैंने कोई क्यू का चेंज नहीं किया, मतलब मैंने क्यू कांस्टेंट ले लिया है। कैसे? अभी ऐसे इंसुलेशन कर दिया था, तो ना हीट अंदर जा रही है और ना ही हीट बाहर जा रही है। सो क्यू की वजह से तो डेल्टा यू चेंज, यू इंटरनल एनर्जी चेंज होने वाली नहीं है। ओके, तो यू कितना है? सपोज पहले कंडीशन में 100 किलो जूल है। अभी मान लो कि मैं कोई टाइप का वर्क भी नहीं कर रहा हूं, ना ऑन दी सिस्टम वर्क कर रहा हूं, ना बाय दी सिस्टम वर्क कर रहा हूं। पानी जहां है वहां पे पड़ा रहा है, पानी जहां पर है वहीं पे ऐसे ही पड़ा रहा है, ना उसमें हीट प्लस माइनस हो रही है, ना उसमें वर्क भी ऑन दी सिस्टम बाय दी सिस्टम नहीं हो रहा है। सो ऑब्वियसली जो मेरा U2 आएगा वो भी U1 जितना ही होगा, 100 किलो जूल, क्योंकि कोई कुछ हुआ ही नहीं है, तो ना हीट अंदर बाहर गई, ना वर्क डन तुमने किया या सिस्टम से हुआ, ऑन द सिस्टम बाय द सिस्टम कुछ नहीं हुआ। सो फिर इंटरनल एनर्जी चेंज कैसे होगी? क्योंकि वो तो 3 तरीके से होती है। मास तुमने कांस्टेंट रखा है, हीट और वर्क को तुम चेंज नहीं कर रहे हो, तो तीन कांस्टेंट रह गए, मास हीट वर्क तीन कांस्टेंट रह गए। देयर विल बी नो चेंज इन द इंटरनल एनर्जी एंड डेल्टा यू इन दैट केस विल बी 0। तो वही तो बोला अभी, दैट इज सेम एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो वही बोल रहे हैं कि अगर Q जो है वो तुम एनर्जी व्हेन इट विल say created, when you give heat the energy will be created in terms of internal energy। मतलब तुमने जो हीट दी वो हीट तो गायब हो गई, लेकिन उसकी वजह से इंटरनल एनर्जी बढ़ गई। ओके, तो एनर्जी क्रिएट हुई, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं? इट कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो जो हमने हीट दी वो हीट तो गायब हो गई। ओके, अब तो हीट है नहीं, हमने जो बर्नर जलाया, कैंडल जलाई, जो भी किया, वो हीट तो चली गई। तो वो चली गई कहां पर? इसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में चली गई। और अगर हीट रिमूव कर दी, हमने आइस डाल दिया और आइस से फिर वो पानी हो गया, आइस ने हीट ले ली। ओके, तो आइस ने हीट ले ली तो पानी हो गया, हीट कहां गई भाई? हीट तो चली गई, कहां चली गई? पानी के अंदर चली गई, मतलब आइस के अंदर चली गई, जो वो पानी बन गया। तो जो एनर्जी हमारे पानी अंदर का पानी जो था 30 डिग्री सेल्सियस, उसका क्या हुआ? वो चली गई। क्यों? क्योंकि उसको मेल्ट करने के लिए उसने हीट दे दी, उसकी अपनी एनर्जी दे दी। तो यहाँ पे डिक्रीज हुई है, तब जाके कहीं पे इंक्रीज हुई है। मतलब देयर विल बी ऑलवेज इंक्रीज डिक्रीज का पेयर होगा। ओके, कहीं अकेले इंक्रीज हो गई ऐसा कभी होगा नहीं। ओके, और कहीं अकेले डिक्रीज हो गई वैसा भी नहीं होगा। सो जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, जो जूल के एक्सपेरिमेंट से हमें मिलता है, अगर मैथमेटिकली देखा जाए तो मैथमेटिकली इट इज डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अंडरस्टूड? डेल्टा यू इज इक्वल्स टू व्हाट? क्यू प्लस डब्ल्यू। दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स and it is same as the law of conservation of energy, that is energy cannot be created nor destroyed, it can transfer from one form to another form. Understood? Any doubt? Done? Okay, so this बराबर बैठो चिराग, ये क्या सो रहे हो ऐसा लग रहा है। Okay, so this is the thing, okay, internal energy। then अब हम वर्क की बात करते हैं। ओके, इंटरनल एनर्जी का चेंजिंग समझ में आ गया, Q से W से वो सब हमने चेंज भी करके देखा, जूल का एक्सपेरिमेंट भी देखा, एंड एट द सेम टाइम वी हैव कंक्लूडेड द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आल्सो, डेल्टा U इज इक्वल्स टू Q प्लस W। अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग से वर्क। सो वर्क क्या है? फिजिक्स की टर्मिनोलॉजी में समझते हैं। सपोज ये मेरा मास है, मास m, उसको मैंने फोर्स दिया तो मेरा मास यहां आ गया। इट हैज मूव्ड द डिस्टेंस d। तो
तो फिजिक्स में हम क्या बोलते थे वर्क को? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट डी, एफ इंटू डी, यही बोलते थे फिजिक्स में वर्क को, उसका यूनिट भी जूल था। सेम वे केमिस्ट्री में भी वर्क है। जैसे कि ऐसा समझो, देयर इज ए सिलेंडर, okay, so assuming से ये मेरा क्या है? पिस्टन है। क्या है? पिस्टन। पिस्टन इज नथिंग बट एन अरेंजमेंट विच कैन मूव टू एंड फ्रो, मतलब आगे पीछे जा सके। जैसे कि हमारी गाड़ी का इंजन होता है, उसके अंदर भी पिस्टन होता है। तो पेट्रोल हम यहाँ डालते हैं, फिर ये कंप्रेस होता है, हम जो किक मारते हैं, सेल लगाते हैं, ओके, तो ये कंप्रेस हो रहा है, और जो कंप्रेस हो गया तो वो वॉल्यूम जो है वो कम हो जाता है, मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, और वापस हम वही टाइम पे स्पार्क दे देते हैं। सो यहाँ पे ब्लास्ट हो जाएगा, छोटा सा ब्लास्ट, वो ब्लास्ट की मतलब बर्निंग शुरू हो जाएगा, कंबशन शुरू हो जाएगा, और ये जो पावर है, ये पावर, ये जो गैस है वो ब्लास्ट होगा तो वो क्या, गैसेस एक्सपांड हो जाएंगे। एक्सपांड कल ही बताया था, गैसेस के ऊपर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो क्या हो जाएगा, एक्सपांड होंगे। सो वो एक्सपांड होंगे तो ये जो यहाँ आ गया था, ओके, पेट्रोल की वजह से, किक मारने की वजह से, तो वो क्या हो जाएगा, वापस वैसे धक्का लगेगा। ये जो धक्का लगा तो ये पिस्टन यहाँ से यहाँ आ गया, और इसकी वजह से हमें गाड़ी में धक्का मिलता है, ओके, किक मिलती है, और फिर हम आगे जाते हैं। ओके, तो कंटिन्यूअसली आगे पीछे होता रहता है। गाड़ी के इंजन की बात कर रहा हूँ, अभी हमें समझने की जरूरत नहीं है थर्मोडायनेमिक्स में, लेकिन सिर्फ बता रहा हूँ, बात आई इसलिए कि वो कंटिन्यूअसली टू एंड फ्रो मोशन करता रहेगा, तब जाके इसको बोलते हैं आईसी इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन। ओके, जो हमारी बाइक में, कार में होता है वो अभी हमारा टॉपिक नहीं है, बट अभी समझो कि ये एक ऐसा पिस्टन सिलेंडर है, और सिलेंडर के अंदर पिस्टन है। पिस्टन इन द सेंस द सरफेस ऑफ मेटल विच कैन गो इन एंड आउट, और ये फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, मतलब कि यहाँ पे हमने ऑयलिंग कर दी है या ओरिंग रख दी है, मतलब ये फ्रिक्शन लेस है, मतलब फ्रिक्शन नहीं है। ऐसे तुम फोर्स लगाओगे तो उसे चला गया, मतलब कि जितना फोर्स लगाया सारा का सारा कन्वर्ट हो गया किसमें, ये मोशन मूव करने में, पिस्टन को मूव करने में, कहीं पर भी वेस्ट हुआ नहीं। हाइपोथेटिकल है, वैसा तो होगा नहीं, फ्रिक्शनलेस सरफेस कहां से लेके आओगे, बट फ्रिक्शन को रिड्यूस तो कर सकते हैं। तो हम वही चीज मान रहे हैं कि हमने यहाँ पे ऑयलिंग कर दी है, ओरिंग लगा दी है, सो दैट मिनिमम फ्रिक्शन इज देयर, मिनिमम फ्रिक्शन, ओके, बट हम बोलेंगे क्या, फ्रिक्शन लेस। ओके, तो फ्रिक्शन लेस सरफेस हमने ले ली है, दैट मीन्स कि अब देखो यहां पर ऐसा समझो कि ये गैस है, ये पूरा क्या है, गैस फील्ड है। ओके, सो ये गैस फील्ड है, और गैस का से इंटरनल प्रेशर है से पी आई, क्या है, इंटरनल का आई और प्रेशर का पी, सो उसका एक प्रेशर है। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, ये पिस्टन को फोर्स लगा रहे हैं, मतलब केमिस्ट्री में हम क्या बोलेंगे, प्रेशर दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, प्रेशर दे रहे हैं। सो मैं यहां पर प्रेशर दे रहा हूं, प्रेशर एक्सटर्नल, सो एक्सटर्नल प्रेशर दे रहा हूं। ओके, तो ऑब्वियसली जब मैं एक्सटर्नल प्रेशर दूंगा तो ये पिस्टन मूव करेगा, लेकिन पिस्टन मूव कब करेगा, जब ऐसा समझो कि यहां का प्रेशर बाहर के प्रेशर से वहां बैठ जाओ तुम लास्ट में। हाँ, सो क्या बोल रहे हैं कि ये फोर्स लगा रहा है। ओके, मतलब कि प्रेशर लगा रहा है, तो प्रेशर लगाएंगे, जैसे कि ये मूव कर रहा है, जैसे फिजिक्स की टर्मिनोलॉजी देखें हम, फोर्स लगाया
तो ये मूव कर दिया। ये कब मूव किया? क्योंकि ये फ्रिक्शन फोर्स भी तो लगा रहा है, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स कम होगा और ये फोर्स ज्यादा होगा तभी मूव कर पाएंगे। अगर सामने वाला फोर्स ज्यादा है तो मूव कर पाएंगे नहीं। जैसे कि हम ये वॉल को फोर्स लगा रहे हैं, वॉल मूव नहीं हो रही है, क्यों? क्योंकि वॉल जो मेरे पे फोर्स लगा रहा है वो ज्यादा है और मैं जो वॉल पे लगा रहा हूँ वो कम है, सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट मूविंग। ओके, सो सेम वे ये कब मूव कर पाएगा? जब ये इंटरनल प्रेशर इज लेस देन दैट ऑफ द एक्सटर्नल प्रेशर। ओके, प्रेशर का यूनिट बहुत सारे यूनिट है, एक यूनिट तुम बताओ तो उससे हमारा काम आगे बढ़े। प्रेशर का यूनिट याद करो, 9th में आया था पहले ही चैप्टर में। न्यूटन पर मीटर। करेक्ट, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, एक यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और प्रेशर की डेफिनेशन भी हमने देखी थी। ओके, दैट इज फोर्स डिवाइडेड बाय यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट इज प्रेशर। ओके, प्रेशर इज नथिंग बट फोर्स पर यूनिट एरिया। ये 9th की बात कर रहा हूँ। और फोर्स का यूनिट है न्यूटन और एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर, दैट्स व्हाई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फोर्स पर यूनिट एरिया। ओके, सो दैट इज प्रेशर। सो फोर्स पर यूनिट एरिया है प्रेशर, अभी इसकी बात नहीं कर रहे। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर 1 यूनिट है। दूसरा यूनिट है से बार, एक और यूनिट है से एटमॉस्फेयर, एक और यूनिट है से केजी पर सेंटीमीटर, बहुत सारे यूनिट है। एक और यूनिट है मीटर ऑफ वाटर। ओके, एक और यूनिट है से mm ऑफ hg, एक और यूनिट है से टॉर्क। ओके, बहुत सारे यूनिट है। पास्कल, यस, इसी का यूनिट है। सो एक और यूनिट है से पास्कल। ओके, सो जिसे हम तुम व्हीकल्स में, साइकिल, बाइक, कार, किसी में भी अगर तुम हवा भरवाने जाओ, एयर फील्ड करवाने जाओ, तो वहां पे 2 यूनिट लिखे हुए होते हैं, एक होता है पास्कल और एक होता है केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ध्यान से देखना। सो बहुत सारे यूनिट होते हैं। ओके, बट हम अभी कोई भी एक यूनिट ले लेते हैं। सपोज आई एम टेकिंग बार। ओके, so say here 1 bar pressure is there, कितना? 1 bar. So P external is 1 bar and P internal is say 0.5 bar. इससे कम होगा तभी तो जा पाएगा। ओके, सो हमने 1 बार प्रेशर लगाया। देखो, मैं अगर 0.5 बार ही प्रेशर लगा था तो ये गैस तो है तो लगाते रहे, मैं हिलूंगा ही नहीं, लाइक दैट। ओके, समझ में आया? लेकिन इससे ज्यादा प्रेशर लगाया तो हुआ क्या? अब ये मूव करेगा, पिस्टन क्या करेगा? कंप्रेस करेगा, मूव करेगा। तो ऐसा समझो कि वो यहां था और यहां आ गया। सपोज ये तुम समझ सको तो इसके जैसा ही ड्रॉ करूं तो से तो ये जो सारा गैस है, ये सारा गैस वो कंप्रेस हो गया और वो पूरा यहां भर गया। कहां भर जाना है? ये पूरा अब यहां भर गया। पूरा भर गया। ओके, और ये पूरा चला गया, ये साइड आ गया, पिस्टन की ये साइड। डन। तो ये पिस्टन एक्चुअली यहां पहुंच गया है, यही पिस्टन यहां पहुंच गया है। ओके, फिर ऐसा मत सोचना कि 2 पिस्टन है। ओके, सो ये पिस्टन क्या हो गया? मूव कर गया। समझ में आया? ओके, ये प्रोसेस जो हम ले रहे हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। व्हाट इज दैट? ये प्रोसेस हम कंसीडर कर रहे हैं आइसोथर्मल। आइसोथर्मल मतलब कि द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। आइसोथर्मल प्रोसेस की डेफिनेशन है द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। देखो, याद कर लो, ये बहुत सारी चीजें नहीं गिवन है लेकिन वर्डिंग्स तो सारे गिवन है। तो 3 आर देयर: आइसोथर्मल, आइसोबारिक एंड आइसोकोरिक। ओके, 3 आर देयर: आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक। अगर प्रोसेस के दरमियान, मतलब के थ्रू आउट द प्रोसेस, इफ योर temperature is remain constant, then it is isothermal. If your pressure is remain constant, it is isobaric. And if your volume is remains, if your in the sense system का volume, system का pressure, system का temperature अगर constant रहे, so in this sense say isothermal मतलब constant temperature, isobaric मतलब constant pressure, and isocoric that is constant volume process. Okay, तो ये 3 है, एक्चुअली बहुत सारी है।
आइसेंथैल्पिक प्रोसेस भी है, आइसेंथैल्पिक, ओके, हाँ जे डबल नीट के लिए याद रख लो, आइसेंथैल्पिक, ओके। सो आइसेंथैल्पिक प्रोसेस मतलब कि एंथैल्पी जो हम आगे जाके देखने वाले हैं वो कांस्टेंट रहेगी। देन एक और होती है आइसेंट्रोपिक, आइसेंट्रोपिक, तो एंट्रोपी वो भी हम आगे जाके देखने वाले हैं, वो कांस्टेंट रहेगी। इसे बोलते हैं एंथैल्पी, इसे बोलते हैं एंट्रोपी। सो एटलीस्ट ये 5 तो हमें पता होनी ही चाहिए, ओके। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंथैल्पी एंड एंट्रोपी। सो प्रेशर का है आइसोबारिक, टेम्परेचर का है आइसोथर्मल, वॉल्यूम का है आइसोकोरिक, एंथैल्पी का है आइसेंथैल्पिक एंड एंट्रोपी का है आइसेंट्रोपिक, ओके। तो अगर जहां भी ये वर्ड्स यूज किए गए हो दैट मीन्स कि वो वहां पे कांस्टेंट है। डन, ओके। तो ये सारे कांस्टेंट होते हैं, उसके टर्मिनोलॉजीज है। एक और कांस्टेंट अभी बता दूं, एक होता है एडियाबैटिक प्रोसेस। क्या? एडियाबैटिक, अभी ये जो बुक में हमने वर्ड देखा वो। सो एडियाबैटिक मतलब क्या? क्यू कांस्टेंट है, ओके। क्यू मतलब कि हीट इनसाइड आउटसाइड कुछ भी हो रहा नहीं है, नो एक्सचेंज, ओके, नो एक्सचेंज नो रिटर्न, ओके, ऐसे दुकान में लिखा हुआ होता है। सो दैट इज एडियाबैटिक प्रोसेस, नो एक्सचेंज नो रिटर्न, ओके। सो एडियाबैटिक क्यू, अंडरस्टूड, ओके। सो ये सारे कांस्टेंट है। चलो वापस थियरी पे आ जाओ। सो हमारी ये प्रोसेस जो है, ये करंटली जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं दैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस, ओके, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मतलब ये जब से मैं पहले प्रेशर था, फिर उसको बढ़ाया, फिर वो कंप्रेस हुआ, ये सब कुछ जो हम कर रहे हैं दैट इज आइसोथर्मल। मतलब कि से 27 डिग्री टेम्परेचर अभी रूम का टेम्परेचर है, तो उतने का उतना ही रहेगा, ना बढ़ेगा ना कम होगा। और हम प्रेशर और वॉल्यूम को, कान बंद हो गया, ओके चलो पता नहीं क्या हो गया, अच्छा चलो वॉट एवर। सो प्रेशर और वॉल्यूम को हम चेंज कर रहे हैं, बट वी आर नॉट चेंजिंग दी टेम्परेचर, ओके, टेम्परेचर इज रिमेनिंग कांस्टेंट। सो जैसे कल बताया था, ओके, कल एक बताया था मैंने, बाउंड्री कैन बी फिक्स्ड और से मूविंग। सो ये देखो मूविंग बाउंड्री है, क्योंकि पिस्टन मूव कर सकता है, so moving boundary, okay, so this is the system, this is the surrounding and this surface is the say boundary, but this is the moving boundary, okay। हाँ चलो, हाँ तो ये क्या हुआ, प्रेशर बढ़ गया, तो फिर हम कैसे लिखे, तो भाई इसका वर्क डन ये याद रखो, ये जो था हमारा F into D, वैसे ही W is equals to force, तो force हमारा क्या था भाई, प्रेशर, so say P external, ओके, इनटू ये क्या था भाई तुम्हारा D, तो यहां पर तुम्हारा क्या है, इसको हम ले सकते हैं इसे L, ये क्या है L, ओके। लेंथ, कितनी लेंथ कम हुई, एट द सेम टाइम ये पिस्टन, भाई ये तो पिस्टन, तो मेरा ऐसा समझो कि ये इतना पिस्टन है, फिर कभी मैंने इतना बड़ा पिस्टन लिया, फिर मैंने कभी इतना बड़ा पिस्टन लिया, तो तुम पिस्टन कितना ले रहे हो, पिस्टन मूव करेगा दैट इज L, बट पिस्टन लिया है कितना, इतना। देखो जैसे कि ये पिस्टन है, ये मूव करने वाला है, सो दिस इज L, बट अगर इतना ही पिस्टन लिया है, वो कंप्रेस कर रहा है, फिर एक केस में ये पूरा हैंड है, मेरा पाम है, वो पिस्टन है, वो कंप्रेस कर रहा है, फिर से पूरा यहां तक से यहां तक का वो कंप्रेस कर रहा है। हर केस में द अमाउंट ऑफ कंप्रेशन विल बी डिफरेंट, क्योंकि एरिया अलग अलग है, इसमें इतना ही एरिया है, ओके, इसमें इतना है, इसमें इतना है, इसमें किसी में इतना है, किसी में इतना है, तो एरिया मैटर करता है, राइट, ओके। सो एरिया की भी अगर बात करें, सो दे यहाँ की रेडियस से ये सेंटर है और ये R है, सो ये सिलेंडर हमने गिना है, तो सिलेंडर मतलब ये एरिया हम बात करें, एरिया, सो L इंटू से A, L, और ये जो R है, R मतलब से पाई R स्क्वायर लिख देंगे हम, ओके। तो A मतलब ये बहुत हो गया, ओके, सो A इन द सेंस क्या, पाई R स्क्वायर, क्योंकि सिलेंडर लिया हुआ था, एंड L है हमारे पास, तो अगर एरिया इंटू L करेंगे तो वो क्या मिलेगा, वॉल्यूम मिलेगा। एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, लेंथ का यूनिट मीटर, तो वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब, डन, ओके, ये तो हमें पता ही है। चलो, सो ना पता हो तो पता चल गया, ओके। सो W वर्क डन इज इक्वल्स टू P एक्सटर्नल इनटू, यहां पर डिस्टेंस था, लेकिन यहां पर क्या हुआ कि सपोज मेरा पहले का वॉल्यूम था VI,
that is volume internal, not internal, volume initial. Okay. थोड़ा नीचे दे। ओके, सो क्या बोल रहे हैं कि कहाँ गए हम, ये वॉल्यूम इनिशियल और फिर ये जो वॉल्यूम था ओके एकदम छोटू सा, दैट इज वी एफ, दैट इज फाइनल वॉल्यूम। ओके, तो वॉल्यूम मतलब वो दोनों आ गया, एरिया एंड लेंथ दोनों आ गया। सो डेल्टा वी ये कम कितना हुआ हमारा से डेल्टा वी, डन। ओके, डेल्टा वी, व्हाट इज डेल्टा वी, जैसे डेल्टा यू था वैसे है डेल्टा वी। सो डेल्टा वी क्या है, डेल्टा वी मतलब फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, दैट्स इट। ओके, लेकिन इसको हम लिखते हैं माइनस, इसको हम माइनस लिखते हैं। क्यों माइनस लिखते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग। क्यों माइनस लिखते हैं, क्योंकि वी एफ माइनस वी आई, मान लो कि वी आई था से 200 मीटर क्यूब इनिशियल वॉल्यूम, अब तुम कंप्रेस कर रहे हो तो वॉल्यूम तो क्या हो गया, कम हो गया। सो से वी एफ हो गया से 100 मीटर क्यूब। सो वी एफ माइनस वी आई, सो से 100 माइनस 200, सो आंसर क्या आएगा, माइनस आएगा, माइनस 100। सो माइनस आंसर आएगा, और माइनस आंसर सपोज हमने 1 बार प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर कितना है 1 बार। ओके, सो 100 इंटू 1, तो लेकिन हमारा आंसर क्या है माइनस 100। तो माइनस मतलब क्या, देखो मैंने पहले भी बताया था, वर्क डन माइनस कब होता है, व्हेन वर्क इज डन बाय दिस सिस्टम तब माइनस, और ऑन दिस सिस्टम तब प्लस। तो ये तो उल्टा हो गया। ओके, तो ये उल्टा ना हो जाए इसीलिए हमने पहले से ही माइनस रख दिया है। तो ये माइनस और डेल्टा वी इज इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई, तो वी एफ माइनस वी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस, वो माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो माई वर्क डन इज प्लस, एंड प्लस मीन्स वर्क इज डन ऑन दिस सिस्टम। तो हाँ, तो हमने तो सिस्टम के ऊपर ही तो वर्क किया है। जब ये पिस्टन यहाँ पे सपोज एक्सपांड हो गया, यहाँ पे मैंने ऐसे स्पार्क डाल दिया, ये गैस ब्लास्ट हो गया, ओके, एक्सप्लोजन हो गया, तो अब ये पिस्टन बाहर आएगा। जब ये पिस्टन बाहर आ रहा है तब हम क्या बोलेंगे, वर्क इज डन बाय दिस सिस्टम, क्योंकि ये गैस है वो पिस्टन को हिला रहा है, अभी पिस्टन गैस को हिला रहा है, तो वर्क इज डन ऑन दिस सिस्टम। उसके बाद गैस पिस्टन को हिलाएगा, मूव करवाएगा, सो वर्क इज डन बाय दिस सिस्टम। तो उससे वो टाइम पे हम क्या बोलेंगे कि अच्छा चलो नेगेटिव, कोई बात नहीं। लेकिन अभी क्या आएगा, वर्क इज डन ऑन दिस सिस्टम। तो हमारा फॉर्मूला गलत ना हो इसलिए हमने पहले ही, हमारा फंडा गलत ना हो इसलिए हमने पहले ही नेगेटिव लिख दिया है। सो क्यों नेगेटिव आया पता चला, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए। क्यों पॉजिटिव बनाना है, क्योंकि हमारा कन्वेंशन ही ऐसा है कि व्हेन वर्क इज डन ऑन दिस सिस्टम, वर्क इज डन ऑन दिस सिस्टम, इट इज टेकिंग पॉजिटिव, वी आर टेकिंग पॉजिटिव। अंडरस्टूड, समझ में आ रहा है। ओके, सो ये हमारा वर्क डन का फॉर्मूला बना, से वर्क डन इज इक्वल्स टू पी एक्सटर्नल इनटू ब्रैकेट, ये मल्टीप्लाई है, कभी माइनस मत कर देना, डेल्टा वी। ओके, और अदरवाइज मतलब पी एक्सटर्नल माइनस डेल्टा वी ऐसा मत समझ लेना। ओके, और अदरवाइज सिंपली ऐसा ही लिखो तो गलती ही ना हो, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू से डेल्टा वी, ऐसे ही लिखो। ओके, तो माइनस आगे ही लिखोगे तो ऐसा गलती नहीं होगी, नहीं तो कैलकुलेशन में वैल्यू पुट करते समय वो 1 बार माइनस डेल्टा वी लिख दिया तो पूरा कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। ओके, सो वो सब्ट्रैक्शन एडिशन वाला माइनस नहीं है, वो साइन है उसकी वैल्यू का माइनस है। ओके, सो ऐसे ही आगे ही लिख दो, तो दैट इज पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। और ये जो हमारी प्रोसेस थी दैट इज कॉल्ड इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस मतलब अभी हम आगे पढ़ेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस, तो अभी हम पढ़ेंगे उसी में आ जाएगा, लेकिन ये समझ में आया। ओके, सो दिस इज अबाउट, क्या देखा हमने देखा कि जो सबसे पहले तो हमने देखा कि 3 तरीके से इंटरनल एनर्जी चेंज हो सकती है, फिर हमने सारी वैल्यूज, साइन, कन्वेंशन वो सब देखा। उसके बाद हमने जूल का एक्सपेरिमेंट देखा, उसमें वर्क इज डन ऑन दिस सिस्टम किया, हीट इन किया, हीट आउट किया, और बोला कि इंटरनल एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड। ओके, और फिर हमको एक फॉर्मूला मिल गया, मतलब से हमें लॉ मिल गया, ओके, दैट इज डेल्टा यू
कब होगा डेल्टा यू, कब बनेगा, नहीं तो वो 0 का 0 ही रहेगा। लेकिन डेल्टा यू की वैल्यू कब मिलेगी हमें, जब या तो हम Q प्लस माइनस करें तब, या तो फिर हम W प्लस माइनस करें तब, सो दैट वी कैन राइट Q प्लस W इज इक्वल्स टू डेल्टा यू, विच इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स, विच इज सेम एज दैट ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, वो देखा, और उसके बाद हमने ये एक्सपेरिमेंट देखा और हमने फिजिकली उसको कंपेयर किया। ओके, फिजिकली कंपेयर किया मतलब फिजिक्स के साथ हमने कंपेयर किया कि यहाँ पे वर्क डन फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है, तो यहाँ पे हमारा फोर्स है क्या, प्रेशर। अगेन तुम यहाँ पे यूनिट देखो तो प्रेशर का यूनिट क्या है, प्रेशर का यूनिट अभी तुमने बोला था बार, तुमने बोला था न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मैंने बोला था बार, तो दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, लेकिन अभी तुम्हें समझ में आया, इसलिए अगर मैं बताऊं तो प्रेशर का यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा वी का यूनिट है मीटर क्यूब, सो मीटर स्क्वायर कट हो गया, सो बाकी बचा न्यूटन इंटू मीटर, एंड न्यूटन इंटू मीटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज जूल। ये आया था इलेक्ट्रिसिटी में, याद हो तो। ओके, न्यूटन इंटू मीटर इज जूल, 1 जूल इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन मीटर। ओके, 1 जूल इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन मीटर। सो आ गया वर्क डन इज इक्वल्स टू जूल, दैट मीन्स आवर इक्वेशन फॉर्मूला इज करेक्ट, अंडरस्टूड। सो यही हमारी सिचुएशन है। नाउ द नेक्स्ट सिचुएशंस, कितना टाइम हुआ है, नेक्स्ट सिचुएशंस वी आर टेकिंग, पूरी तो कंप्लीट नहीं हो पाएगी आज, बट थोड़ी बहुत देखते हैं। तो नेक्स्ट सिचुएशन सेम सिचुएशन है। ओके, सेम सिचुएशन ऐसी ही, बहुत ही ऐसा हो गया है, ओके कोई बात नहीं, ऐसी ही सेम सिचुएशन है, लेकिन अब समझो पहले यहाँ पर है। ओके, हाँ चलो वो नेक्स्ट सिचुएशन बाद में देखेंगे, पहले इसका ग्राफ देखते हैं। सो अगर इसका हम ग्राफ ड्रॉ करें, ओके इसका हम ग्राफ ड्रॉ करें, सो से y एक्सिस पे है प्रेशर, x एक्सिस पर है वॉल्यूम, सो उसका ग्राफ हमें मिलेगा लाइक दिस। अरे सर ये तो ऐसा मिला, तो ऐसा ही मिलेगा ना, क्यों, क्योंकि सपोज प्रेशर अभी कम है। ओके, प्रेशर कम है, सो ये मेरे वॉल्यूम की ये बहुत ज्यादा वैल्यू है, मेरा एक पहले वॉल्यूम कितना था, बहुत ज्यादा था, से 200 मीटर क्यूब। ओके, और प्रेशर था हमारा कम। अब क्या हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, मतलब एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ रहा है। ओके, एक्सटर्नल प्रेशर, ये P कौन सा है, एक्सटर्नल। सो एक्सटर्नल प्रेशर मैंने बढ़ाया, पहले ऐसा समझो कि एक्सटर्नल प्रेशर कितना था 0.5, इंटरनल जितना ही था 0.5 बार 0.5 बार, तब वॉल्यूम कितना था से दिस मच, इसको मैंने क्या बोला था से 200 मीटर क्यूब, डन। ओके, और अब क्या हुआ कि प्रेशर बढ़ाया, मतलब 0.5 से मैंने कहां चला गया, 1 चला गया। ओके, ये 0.5 बार था और अब मैं कितने पे आ गया हूँ, 1 बार पे आ गया हूँ। सो प्रेशर मैंने बढ़ाया, एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाया तो वो कंप्रेस हुआ। ओके, वॉल्यूम कंप्रेस हुआ ना, तो देखो कंप्रेस हुआ तो ये कहाँ पहुंच गए, हम यहाँ पहुंच गए, यहाँ पहुंच गए तो यहाँ से नीचे आएंगे तो देखो ये अगर 200 है तो ये कितना हो गया से 100 मीटर। तुम और अगर कंप्रेस कर रहे हो सर नहीं हम 1 बार नहीं, हम तो 3 बार प्रेशर दे देंगे, तो दे दो 3 बार प्रेशर और कंप्रेस हो जाएगा, तो इतना सा हो जाएगा, एकदम छोटे में चला जाएगा। ओके, तो एकदम छोटे में चला गया तो और ज्यादा तुमने 3 बार प्रेशर दे दिया, तो 3 बार प्रेशर में भी तुम्हें देखो पहले एक्सपेरिमेंट किया जाता है फिर ग्राफ ड्रॉ किया जाता है, लेकिन हम समझने के लिए उल्टा कर रहे हैं, पहले ग्राफ बना दिया और फिर मैं समझा। नहीं तो प्रैक्टिकली कैसे होता है कि अच्छा प्रेशर इतना दिया, वॉल्यूम कितना आया, चलो भाई मैंने सर यहाँ प्रेशर रखा तो वॉल्यूम ये आया, तो मैंने ये पॉइंट बना दिया, फिर सर मैंने से प्रेशर बढ़ाया तो ये पॉइंट आया तो मैंने वहां डाल दिया, फिर सर मैंने 2 बार प्रेशर किया तो मेरे पास एक वॉल्यूम की वैल्यू मिली तो ये पॉइंट मिल गया, फिर 3 बार हुआ तो एक वॉल्यूम की वैल्यू मिली ये बार, तो ये सारे पॉइंट आ गए। अब जाके मैं पूरे सारे पॉइंट को कनेक्ट करूंगा तब जाके मुझे ये ग्राफ मिलेगा। तो ये ग्राफ उनको साइंटिस्ट को कैसे मिलता है, हमारी बुक में कैसे छप गया है, कोई भी ग्राफ छापने के लिए, प्रिंट करने के लिए, डेटा लाने के लिए ग्राफ पहले नहीं आता, पहले डेटा आता है उसके बाद ग्राफ आता है। ग्राफ इज जस्ट द इंटरप्रिटेशन टेक्निक, ग्राफ पे से हम इंटरप्रेट कर सके कि अच्छा प्रेशर बढ़ने के साथ वॉल्यूम क्या हो रहा है, तो इट इज जस्ट द इंटरप्रिटेशन, पहले ग्राफ कभी नहीं आता, पहले डेटा आता है। ओके, सो लेकिन समझने के लिए हम ले रहे हैं कि जैसे जैसे हम प्रेशर को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे वॉल्यूम की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। अंडरस्टूड। और ये पहले वाला जो वर्क डन है, मतलब से यहां से लेकर यहां तक तुम पहुंचे, सो ये जो वर्क डन है, ओके इतना जो वर्क डन है, तो ये वर्क डन कौन सा है कि भाई तुम 0.5 बार से 1 बार तक लेके आ गए एक्सटर्नल प्रेशर को,
तो मतलब तुमने कुछ वर्क किया, वर्क डन ऑन दिस सिस्टम, सो दैट वर्क डन कैन बी फाउंड आउट बाय पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी विद द माइनस साइन। ओके, तो वो वैल्यू हम डालेंगे तो हमें वर्क डन मिल जाएगा। फिर तुम और प्रेशर बढ़ा रहे हो, ओके, तो वापस और दूसरा वर्क डन मिलेगा, फिर और प्रेशर बढ़ा रहे हो, तीसरा वर्क डन मिलेगा। तो वैसे सारे वर्क डन को तुम इकट्ठा करो तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक का पूरा वर्क डन यू विल गेट। ओके, सो जैसे हमने फिजिक्स में पढ़ा था, ओके, कि क्या पढ़ा था फिजिक्स में, डिस्टेंस वेलोसिटी ग्राफ। ओके, डिस्टेंस वेलोसिटी ग्राफ जो था, ओके, डिस्टेंस वेलोसिटी ग्राफ था, तो वो हमने देखा था। तो वो हमें सॉरी, डिस्टेंस वेलोसिटी ग्राफ नहीं, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। ओके, तो अभी देखा था न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ऐसा ही था। ओके, तो जो फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है मैंने बताया भी था कैसे, कि ये ग्राफ है और सपोज ये फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है हमारा, तो उसका जो उसके अंदर का जो एरिया होगा दैट विल गिव अस द वर्क डन। ओके, तो वैसे ही यहाँ पर जो पीवी ग्राफ है, पी वर्सेस वी का ग्राफ है, उसके अंदर का जो वॉल्यूम एरिया होगा दैट एरिया विल गिव अस द वर्क डन। ओके, बट वैसे जो फिजिक्स में क्वेश्चंस आए थे मैंने तुम्हें जो बताए थे, ओके, तुम लोगों ने सॉल्व किए थे, फिर एक बार रेक्टेंगल लिया था, फिर एक बार ट्रेपेजियम भी लिया था, ट्राइंगल लिया था, याद हो तो। ओके, न्यूमेरिकल में अभी ही जस्ट अभी मतलब लास्ट मंथ में। ओके, सो वैसे क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं होते कि एरिया अंडर द पीवी डायग्राम गिव यू वर्क्स डन, लेकिन सिलेबस में नहीं है। अगर होंगे मतलब बहुत सारी चीजें रिड्यूस की गई है क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स एक पूरी ब्रांच है। ओके, थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस, ये उसकी डेफिनेशन है। थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द एनर्जी ट्रांजैक्शन और एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। ऐसा रटा था मैंने बहुत सालों पहले। ओके, सो बहुत सालों पहले ऐसे इंजीनियरिंग में रट लिया था। क्यों? क्योंकि इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी। Thermodynamics is the branch of science in which we study the exchange of energy taking place between surrounding and system. ओके, तो ये पूरी की पूरी ब्रांच है। ओके, मेरा तो मास्टर डिग्री थर्मल इंजीनियरिंग में है, मतलब से 4 सेमेस्टर, मतलब 2 साल मैंने यही पढ़ा है। तो सोचो इतना डिटेल एक चैप्टर में देना नाइंसाफी होगी ना। कल जैसे हमने बोला था कि चींटी को एलिफेंट के साथ कंपेयर करना, सिस्टम की डेफिनेशन विथ रिस्पेक्ट टू यूनिवर्स। ओके, तो ये कितना मतलब चीज हो गई। तो वैसे ही ये बहुत बड़ी ब्रांच है, इसीलिए तुम्हें सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया जाता है, मतलब मेजोरिटीली सब कुछ इंपॉर्टेंट बता दिया जाता है, लेकिन जैसे मैंने बताया मैक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोपिक का बहुत नहीं बताया गया है। देन से आज जो मैंने बताया एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी, उसके बारे में नहीं बताया गया है। तो बहुत सारी चीजें इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है एट दिस लेवल। तुम्हें एटलीस्ट पता चल जाए अच्छा थर्मोडायनेमिक्स में ये सारी चीजें होती है, दैट इज मोर देन इनफ। ओके, दैट इज मोर देन इनफ। इफ यू आर से इंटरेस्टेड देन फर्दर स्टडी यू कैन गो डीप इनटू इट। ओके, से पर्टिकुलरली एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है थर्मोडायनेमिक्स, और फिर थर्मोडायनेमिक्स एक पूरी ब्रांच है। अगर तुम्हें उसमें बहुत डिटेल में जाना है तो फिर मास्टर्स डिग्री उसमें करो, उसमें भी बहुत डिटेल में। सपोज मास्टर डिग्री तुमने कर ली थर्मल में, अभी भी और डिटेल में जाना है, सपोज ये एंथैल्पी में। ओके, तो एंथैल्पी में तुम घुस गए, आगे जाके हम एंट्रोपी पढ़ेंगे। तो अभी हमने क्या देखा, इंटरनल एनर्जी। तो तुम्हें इंटरनल एनर्जी में आगे जाना है तो फिर उसमें डीप स्टडी एंथैल्पी में आगे जाना है, एंट्रोपी में आगे जाना है। सो फिर वो डबल मास्टर, पोस्ट डॉक, पीएचडी के बाद पोस्ट डॉक। ओके, तो वो सब चीजें आती रहती है। जितना डिटेल में जाओ देखो, वो तो नॉलेज इज इनफाइनाइट। ओके, ज्ञान तो मतलब असीमित है, खत्म नहीं होगा। तुम जितना आगे बढ़ोगे उतना बढ़ते ही जाओगे। सो लाइक दैट। तो ये पीवी डायग्राम है। अभी नेक्स्ट हमें जो पढ़ना है वो थियरी क्या है, दैट वी विल टेक टुमारो, अगर वैसे भी कंप्लीट नहीं होगी। सो कहने का मीनिंग क्या है, हम क्या करने वाले हैं टुमारो, वो पहले से बता दूं। ये जो हमने एक्सपेरिमेंट किया सेम एक्सपेरिमेंट हम करने वाले हैं, बट क्या करेंगे, यहाँ पे हमने 0.5 दोनों साइड था और फिर डायरेक्टली वहां पे 1 बार अप्लाई कर दिया। लेकिन अब हम क्या करेंगे, 0.5 अप्लाई किया और अब 0.5 तो दोनों साइड था, और अब हमने वहां पे 0.6 कर दिया। क्या कर दिया, 0.6। तो वो कितना कम मूव होगा, क्योंकि थोड़ा ही ज्यादा है तो थोड़ा ही मूवमेंट होगा। यहाँ पे तो डायरेक्ट 0.5 ज्यादा था तो बहुत ज्यादा कंप्रेस हुआ, तो यहाँ पे भी कंप्रेस होगा लेकिन बहुत कम होगा, बहुत कम कंप्रेस हुआ। और वापस ये
इसको कंप्रेस लगा तो इसकी एनर्जी बढ़ गई, तो ये भी वापस रिवर्सिबल वर्क देगा। रिवर्सिबल वर्क मतलब अब ये साइड ज्यादा प्रेशर हो गया है और ये साइड कम प्रेशर हो गया है। देखो ये कब तक, ये प्रेशराइज सिचुएशंस कब तक चल सकती है। जैसे कि टेम्परेचर इक्विलिब्रियम की हम बात करें, गरम चाय है, ओके, और यहाँ रख दी मैंने, तो ऑब्वियसली वी आर नोइंग कि गरम चाय का टेम्परेचर क्या होता जाएगा, ठंडा होता जाएगा, धीरे धीरे डिक्रीज होता जाएगा। सो कहां तक डिक्रीज होगा, क्या वो आइस बन जाएगी, नहीं बन जाएगी, ओके। तो भाई रूम टेम्परेचर जितना होगा और से सराउंडिंग एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जितना होगा वहां तक वो रीच जाएगी। उसके नीचे तो वो तो कूलिंग इफेक्ट हो गई, तो वो उसको डायरेक्टली ऑटोमेटिकली होने वाले नहीं है। तो यहां पर भी हम कंप्रेस कर रहे हैं, तो कब तक कंप्रेस होगा, जब दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाए तब तक, ओके। मतलब कि यहाँ पे कितना था 0.5, यहाँ पे भी 0.5, तो कोई कंप्रेशन नहीं होगा। अब हमने यहाँ पे 1 कर दिया, तो जब तक अंदर 1 नहीं हो जाता ना तब तक तुम कंप्रेस कर सकते हो। मतलब तुम अगर जब कंप्रेस कर रहे हो तो एक्चुअली अंदर का प्रेशर बढ़ रहा है, समझ में आ रहा है, अंदर का प्रेशर बढ़ रहा है। ये जो तुम कंप्रेस कर रहे हो ये कितना था 0.5, बाहर कितना था 1, अब 1 है तो 1 है मतलब अंदर जाएगा। लेकिन कब, कहां तक अंदर जाएगा भाई, यहाँ चिपक जाएगा या यहाँ तक कहां तक अंदर जाएगा, जब तक वो दोनों इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। क्यों, क्योंकि जैसे हमने बताया कि प्रेशर इज नथिंग बट फोर्स डिवाइडेड बाय यूनिट एरिया। तो ये जो एरिया है वो एरिया कहां तक, मतलब तुम फोर्स लगाते जाओ कहां तक कर पाओगे, जब तक इक्विलिब्रियम रीच ना हो जाए तब तक। तो मतलब 1 बार था और यहाँ पे 0.5 था। फिर अब जैसे ही तुम बढ़ाओगे तो अब क्या हो गया, देखो छोटे एरिया में ज्यादा गैस चला गया है। पहले क्या था, इतने बड़े एरिया में पूरा गैस था, इतने बड़े एरिया में ये पूरा गैस फैला हुआ था, और जब हमने कंप्रेस किया तो इतने छोटे एरिया में सेम गैस की क्वांटिटी कम नहीं हुई है, उतना गैस है लेकिन एरिया उसका कम हो गया, कम वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम उसका कम हो गया। पहले ये हमने देखा ना, ये 200 था, ये 100 है, वॉल्यूम कम हो गया, मतलब लेंथ भी कम हो गई और एरिया भी कम हो गया। तो अगर एरिया कम हो गया तो देखो यहाँ पे एरिया कम हो गया है, सो एरिया इज डिक्रीजिंग, तो प्रेशर में क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ओके। तो प्रेशर अंदर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो कब तक इंक्रीज होगा, जब तक वो 1 बार है, अंदर का भी 1 बार नहीं हो जाता तब तक वो जाता ही जाएगा, कंप्रेस करता ही जाएगा। अभी यहाँ 1 बार और वहां 1 बार, बोले कंप्रेस करो, अरे कहां से कंप्रेस होगा, सेम है। जैसे अभी बताया कि भाई मैं जितना फोर्स वॉल पे लगा रहा हूँ, वॉल भी उतना फोर्स मुझे लगा रही है, तो ना वॉल मुझे धक्का दे पा रही है ना मैं वॉल को धक्का दे पा रहा हूँ, दोनों का फोर्स सेम है, इसलिए अंडरस्टूड, सेम फंडा है। लेकिन समझ में आया क्या करने वाले हैं हम नेक्स्ट थियरी में, ओके। सो हम वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ओके।